all of you. So let us start with the gravitation. Yes, so last time हमने gravitation के अंदर the concept of escape velocity जो देखा था, और escape velocity के अंदर हमने the relationship between the critical velocity and escape velocity देखा था, right? Yes. So let us continue the same. Okay. तो देखो यही हमने देखा था लास्ट टाइम कि the critical velocity and escape velocity are related with each other by the relationship that is VE is equal to √2 times of VC. करेक्ट है? तो ये हमने देखा था. तो चलो आगे. अभी इसमें हमने देखा कि by what percent or what is the additional velocity that is to be given to the satellite or any rotating objects around the earth so that it can escape it's if it is already revolving. Okay, so सोचो कि अगर सपोज एक बॉडी जो है, सपोज ये अर्थ है और यहाँ पे एक बॉडी जो है वो ऑलरेडी रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, इट इज ऑलरेडी मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ इन दिस वे. तो अभी इसके पास vc इतना वेलोसिटी तो ऑलरेडी है, देखो, करेक्ट, इट इज ऑलरेडी रिवॉल्विंग विद द वेलोसिटी vc, राइट? But if you want to make it free from Earth's gravitational influence, then we will have to provide a velocity that is equal to VE, correct है? Which is actually √2 times of VC. So by what amount VE is greater than VC? तो वो अगर हम देखेंगे ठीक से तो ये हमको पता चलता है VE is equal to √2 times of VC, and √2 का वैल्यू सबको पता है ऑलरेडी, it is 1.414, right? So if we just express this in decimals in this way, so it becomes VE is equal to 1.414 into VC. Yes. And now if we just see, if we just split this 1.414 in two parts, that is VE is equal to 1 plus 0.414, correct here? And that is multiplied by VC, correct? And if we just open this bracket, then we can get it in the next step, that is VE is equal to VC plus 0.414 into VC, and this can be expressed in terms of percentages because we know that is 0.414 मतलब क्या? So इसको हम लिख सकते हैं 41.4 divided by 100 into VC, correct है? And 41.4 upon 100 मतलब ही क्या हो गया? 41% हो गया. So in this way we can get that VE is equal to VC plus 41.4% of VC. Yes. So this is the result which we want to emphasize here. That is the additional velocity which is to be given to any satellite or any rotating object around the Earth so that it can escape will be actually equal to 41% of the velocity already it has. तो मतलब जिस वेलोसिटी के साथ वो घूम रहा है तो उस वेलोसिटी के 41% इतना वेलोसिटी हमको उसको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा ताकि वो कंप्लीट बाहर निकल जाए. तो ये एक पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखो ठीक से. ठीक है, चलो अभी हम आगे बढ़ते हैं. देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ बाइंडिंग एनर्जी जो कि हमने कल ऑलरेडी कल भी देखा था. बाइंडिंग एनर्जी, it is the amount of energy that is to be given to a satellite or any object revolving around the earth so as to make it free from earth's gravitational field. तो suppose ये earth है और ये satellite already revolve कर रहा है earth के आसपास circular orbit में अगर घूम रहा है, तो अभी उसके पास कितना एनर्जी है, टोटल एनर्जी कितना है, तो वो निकालने के लिए हमको सबसे पहले उसका पोटेंशियल एनर्जी निकालना पड़ेगा. तो जिसके लिए हमारे पास ऑलरेडी फॉर्मूला है. अगर अर्थ का रेडियस मान लिया r है और अगर इसका हाइट जो है सैटेलाइट का है अर्थ के सेंटर अर्थ के सरफेस से, तो वो अगर h है तो हम ये जो टोटल डिस्टेंस है तो ये डिस्टेंस एक्चुअली r कहलाता है. दिस विल बी द स्मॉल r हियर. द टोटल डिस्टेंस ऑफ दिस सैटेलाइट फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ will be r, small r. And here potential energy can be found out to be simply minus of g m small m upon small r, that is gmm upon r plus h. ऐसा भी इसको हम लिख सकते हैं आराम से, नो डाउट.
तो ये हो गया potential energy of the satellite at a height h above the Earth's surface. At the same time, it has kinetic energy also, and kinetic energy can be found out by the formula half mv squared. But v, velocity with which it is revolving, is nothing but the critical velocity, and that's why this critical velocity, that is bc, will be injected here. So if we just use this vc, value of vc is already, we know that it is going to be root of gm upon small r, करेक्ट है? तो ये अगर हमने यहाँ पे डाल दिया और उसका स्क्वायर किया, तो इससे हमको काइनेटिक एनर्जी क्या मिलता है? तो देखो, एक से हाफ m into gm upon r. So it can also be written as g capital M small m upon 2 times of r, which can also be written as g m small m upon 2 times of capital R plus h, correct है? And now the total energy can also be found out. See here, total energy कैसे निकालना है हमको? तो इन दोनों का हमको एडिशन करना है. ये जो पोटेंशियल एनर्जी है और टोटल एनर्जी जो हमको यहाँ पे दिख रहा है, तो ये दोनों को ऐड करना है. So that we can get this minus gmm upon small r plus gmm upon 2 times of small r. तो यहाँ पे जबकि एलसीएम निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? देखो ठीक से, तो ये 2r जो है, तो वो यहाँ पे डालना पड़ेगा. ये 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इधर, राइट? मल्टीप्लाई और डिवाइड, जिससे वो बन जाएगा एक्चुअली -2 gmm अपॉन r प्लस gmm upon 2r, so that we can get this total energy of the satellite to be simply equal to minus of gm small m upon 2r, and this is actually the total energy of the satellite, and it is negative. What does this negative sign tells us? देखो, ये माइनस साइन क्या बताता है हमको? The negative sign tells us that this satellite is still bound to the earth with this much of energy, and in order to make it free, the same amount of positive energy has to be given to the satellite, and that is called as the binding energy. So we can get that binding energy is actually given by plus g m small m upon 2r in this way. So this is actually called as the binding energy, correct है? तो ये binding energy का formula बनता है. So remember this correctly. This is a formula for binding energy. Now if we just see all these 4 formulae in single slide, तो हम इस तरह से देख सकते हैं. चारों फॉर्मूले हम एक ही इसमें स्लाइड में देखेंगे. ठीक से देखो, तो सबसे पहला जो हमारे पास है वो है पोटेंशियल एनर्जी एट अ हाइट h above the surface, which is going to be minus of g m m upon small r, करेक्ट है? जो अभी अभी हमने देखा. दूसरा, काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला हमारे पास है वो है g m m upon 2 times of small r. तीसरा है टोटल एनर्जी, जो है माइनस ऑफ g m m upon 2 times of r, and चौथा जो है बाइंडिंग एनर्जी, which is actually just negative of this total energy, that is positive. So it will be gmm upon 2r here. So we can see clearly that the formula for kinetic energy and binding energy, see carefully, ये जो kinetic energy का formula है वो और binding energy का जो formula है, तो वो coincidentally they are same, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है वो. तो ये हमको याद रखने के लिए अच्छी तरह से ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि काइनेटिक एनर्जी इज न्यूमेरिकली सेम एज द बाइंडिंग एनर्जी, एंड देयर कॉमन वैल्यू इज एक्चुअली हाफ ऑफ, और सॉरी, इट इज देयर कॉमन वैल्यू इज जस्ट नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी. ये भी हम देख रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि देखो टोटल एनर्जी को अगर हम सपोज सिर्फ माइनस साइन से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको बाइंडिंग एनर्जी मिलेगा या काइनेटिक एनर्जी भी मिल सकता है. दोनों का वैल्यू एक्चुअली सेम ही है. सो काइनेटिक एनर्जी इज सेम एज बाइंडिंग एनर्जी, व्हिच इज सेम एज माइनस ऑफ टोटल एनर्जी, एंड देयर कॉमन वैल्यू इज आल्सो सेम एज माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. ये भी अच्छी तरह से याद रख लो. देखो ठीक से, 2 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है कि नहीं? क्योंकि देखो अगर इस पोटेंशियल एनर्जी को अगर हम हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा? अगर ये पूरा जो ब्रैकेट है इसको अगर हाफ सामने लगा देंगे, यहाँ पे अगर हाफ लगा देंगे तो ये 2 जो है तो वो जाके इधर बैठ जाएगा, मतलब ही वो क्या बनेगा? तो इसके जैसा बन जाएगा. या अगर माइनस साइन से भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो प्लस हो जाएगा और उसकी वजह से इसके जैसा बन जाएगा, काइनेटिक एनर्जी या बाइंडिंग एनर्जी के जैसा बन जाएगा. So we can say clearly that this kinetic energy is same as binding energy,
which is same as minus total energy, which is same as minus of half potential energy. तो ये जो लाइन है ये अच्छी तरह से याद रख लो. इस लाइन के अंदर चारों फॉर्मूले तुम्हारे आ गए, इसमें फिर कंफ्यूजन होने का कोई जरूरत नहीं रहेगा. तो कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होगा अगर तुम ये पूरा लाइन अगर याद रखते हो तो. काइनेटिक एनर्जी सेम एज बाइंडिंग एनर्जी, सेम एज माइनस ऑफ टोटल एनर्जी which is equal to minus of potential energy. And along with that just remember this formula also. बाइंडिंग एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो भी याद रख लो ठीक से. तो और उससे भी आगे जाके बाइंडिंग एनर्जी का और एक फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ एच है, तो वो भी याद रख लो, GMM अपॉन 2 टाइम्स ऑफ R प्लस H. ये भी अच्छी तरह से याद रख लो क्योंकि स्मॉल r के बदले ही हम R प्लस H डालते हैं. और उससे भी आगे जाके बाइंडिंग एनर्जी कैन आल्सो बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ स्मॉल g. So see here binding energy can be expressed as G into capital M into small m upon 2 times of R. यहाँ पे है no doubt, but already we know that GM is actually equal to G into R square, small g into R square. याद है ये फॉर्मूला हमने लास्ट टाइम डिराइव किया था क्योंकि G is equal to हमने ऑलरेडी प्रूव किया है कि GM अपॉन R square हुआ करता है, करेक्ट है. तो अगर हमने ये अगर डाल दिया यहाँ पे मतलब GH एक्चुअली GH का ये फॉर्मूला है. तो GM can be written to be equal to GH into small r square, करेक्ट है. सॉरी, यस. एंड GM का जो वैल्यू है वो GH इंटू स्मॉल r स्क्वायर होता है और G इंटू R स्क्वायर भी होता है क्योंकि हमारे पास दो फॉर्मूले हैं, एक तो GH इक्वल टू GM अपॉन R स्क्वायर भी है और G इज इक्वल टू GM अपॉन कैपिटल R स्क्वायर भी है. तो इससे हमको ये वाला फॉर्मूला मिलता है और इससे हमको ये वाला फॉर्मूला मिलता है, ठीक है. तो अभी इसमें देखो ठीक से, अगर हमने इस GM के बदले अगर डाल दिया उसका वैल्यू तो हमको मिलेगा GM के बदले GH इंटू R स्क्वायर इंटू M अपॉन 2 times of R. So that is R gets cancelled once and hence we are left with simply half of M into GH into small r, correct है. तो ये फॉर्मूला हमको मिलता है. And if you want to find out the binding energy at a point which is very close to Earth's surface, then this small GH can be replaced by simply G and this small r can be replaced by capital R. So binding energy for a satellite which is revolving very close to Earth's surface will be actually half of mgr, capital R. तो ये भी एक फॉर्मूला अच्छी तरह से याद रख लो, ठीक है. तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर बाइंडिंग एनर्जी फॉर अ सैटेलाइट व्हिच इज रिवॉल्विंग वेरी क्लोज टू अर्थ सरफेस, बट रिवॉल्विंग, नॉट केप्ट, जस्ट केप्ट. अगर वो केप्ट है, सिर्फ रखा हुआ है, तो ऐसे केस में उसका बाइंडिंग एनर्जी कितना बनेगा, सेम एज इट्स नेगेटिव ऑफ इट्स पोटेंशियल एनर्जी, जो कि GM अपॉन R के बराबर हुआ करता है, जिसको हम अगर स्मॉल g के फॉर्म में एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो इस GM को हमको स्मॉल g इंटू R स्क्वायर एक्सप्रेस करना पड़ेगा, जिससे R कैंसिल होने के बाद सिंपली mgr बनेगा. तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट व्हिच इज जस्ट केप्ट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ओके. And this is the formula for finding the binding energy of a satellite which is revolving in a circular orbit, very close to the surface of Earth. Okay, very close. तो याद रखो ठीक से. तो ये सब चीजें हैं, ओके. एंड 2-3 theoretical टॉपिक्स जो है तो वो भी हम डिस्कस करेंगे फटाफट अभी. जैसा कि तुमको पता होगा द कंसेप्ट ऑफ weightlessness of a satellite, weightlessness of an astronaut situated in an orbiting satellite. देखो सपोज एक एस्ट्रोनॉट अगर किसी सैटेलाइट के अंदर बैठा है और अगर वो सैटेलाइट घूम रहा है सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर, इस तरह से समझो ये सैटेलाइट है और इस सैटेलाइट के अंदर ये एस्ट्रोनॉट बैठा हुआ है. Yes, okay, so this is suppose the astronaut here. Now we'll see what are the forces acting on this astronaut. Is one is the gravitational force in a downward direction, ठीक है, उसको हम FG बोल सकते हैं. And at the same time, since the astronaut is revolving in a circular orbit,
So the centrifugal force will also be acting on it. We can denote it by Fc. So both of these forces, if we see carefully, then Fg, gravitational force, is given by this Gmm upon small r square. Correct here, where small r is nothing but the radius of orbit. That is the distance of this satellite from the center of Earth. And this Fg here, Fc here, means of centrifugal force here, will be given by the formula small m into Vc square upon r. Correct है. But actually हमने ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल होता है, ये बात यूज करके ही तो क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला डिराइव किया था. तो इसलिए ये दोनों फॉर्मूले से ये दोनों वैल्यूज सेम ही होंगे ऑब्वियसली. इवन अगर हमको चेक ही करना है, वेरीफाई करके देखना है, तो वो भी हम करके देख सकते हैं. वीसी का जो वैल्यू हमारे पास है रूट ऑफ जीएम अपॉन आर, ये अगर हमने इसके अंदर डाल दिया, ये देखो यहाँ पे अगर हमने डाल दिया, तो इस एफ सी को हम सॉल्व कर सकते, सिंप्लीफाई कर सकते हैं. तो m बाई आर इंटू वी सी का स्क्वायर, जहाँ पे वी सी मतलब क्या है, जीएम अपॉन आर, तो उसका स्क्वायर, जिससे हमको मिलेगा m बाई आर इंटू इस वी सी का स्क्वायर, मतलब ही वो बनेगा जीएम अपॉन आर सिंपली, क्योंकि स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया. ठीक है, तो जिससे हमको मिल रहा है अभी यहाँ पे फाइनली, that is g capital M small m upon r square, which is same as fg, which we have seen here already. तो इस तरह से हमने ये प्रूव कर दिया कि fc is actually equal to fg. That means the gravitational force acting on this satellite or astronaut here is actually balanced by the centrifugal force acting on it, right? And since these two forces are just balanced, what we can say is here the net force acting on this astronaut will be 0. So the astronaut will be experiencing a weightlessness condition, because the net force acting on it is actually going to be 0. Zero force उसके ऊपर काम करता है. No net force is acting on it actually, and that's why the astronaut in an orbiting satellite will actually experience weightlessness. Weightlessness मतलब the life in satellite is very strange. The objects in the satellite are purely weightless. Actually they behave as if they are completely weightless. अभी देखो इसमें एक बात समझने जैसी है कि मींस एक्चुअली यहाँ पे वेट जीरो होता है ऐसी बात नहीं है. ग्रेविटेशनल फोर्स डजंट बिकम जीरो, इट इज ऑलरेडी देयर. अगर ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो होता तो सैटेलाइट घूमता क्यों ना. जब सैटेलाइट घूम रहा है इसका मतलब ही यह है कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज नॉट गोइंग टू बी जीरो, but the net force acting on the satellite becomes zero just because the gravitational force acting on the astronaut is just balanced by the centrifugal force acting on it. जैसे हम किसी मेरी गो राउंड के ऊपर जब बैठते हैं, तो समझो ये मेरी गो राउंड है, और मेरी गो राउंड के अंदर हमको पता है ऑलरेडी कि अलग अलग जो चेयर्स होते हैं, और ये चेयर्स भी घूमते हैं इस मेरी गो राउंड के साथ, राइट. ये सपोज इस तरह से ये मेरी गो राउंड है, या जायंट व्हील उसको हम बोल सकते हैं. देखो, तो इस जायंट व्हील के अंदर जब हम बैठते हैं तो स्टॉप पॉइंट पे जाने के बाद क्या होता है, हमारे ऊपर दो फोर्सेस काम करते हैं. एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे ऊपर काम कर रहा होता है, और एट द सेम टाइम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी काम करता है. और ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमारा वेट थोड़ा कम करने के लिए कोशिश करता है. और अगर ये स्पीड इसका जायंट व्हील का जो स्पीड है रोटेशन का, वो अगर हम सपोज बढ़ाते चले जाए, जैसे जैसे वो स्पीड बढ़ता जाता है, वैसे वैसे हाईएस्ट पॉइंट पे जाने के बाद जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमारे ऊपर काम करता है वो बढ़ता जाता है. अगर एक स्पीड को अगर हम एक पर्टिकुलर लेवल पे अगर सेट करते हैं, तो उस केस में ऐसा भी हो सकता है कि एट हाईएस्ट पॉइंट पे जाके जो पर्सन है वो बिल्कुल फ्लोट हो जाए, फ्लोट करे. उससे भी ज्यादा स्पीड बढ़ाएंगे तो वो पर्सन जो है वो उड़ जाएगा. तो वो इसलिए उसका जो स्पीड है वो इतना बढ़ाया नहीं जाता है, नो डाउट. लेकिन एक पर्टिकुलर स्पीड पे ऐसा हो सकता है कि द पर्सन एट द हाईएस्ट पॉइंट will just experience the weightlessness condition, and the reason behind it is that the weight acting on this person is exactly balanced by the centrifugal force acting on it, and because of that only the two forces just get balanced, and that's why the person will feel weightlessness here itself on the in the giant wheel only. तो giant wheel के अंदर भी हम weightlessness condition पैदा कर सकते हैं, artificially weightlessness हम experience कर सकते हैं. But the same thing is experienced in this case of orbiting satellite. Remember, this is the condition of weightlessness of an orbiting satellite. Yes.
Any doubt again? Okay. चलो, तो ये एक पॉइंट हमने डिस्कस किया. अभी सेकेंड पॉइंट हमको डिस्कस करना है. इट इज अबाउट द communication satellite. Okay, suppose here the earth, and suppose there is a satellite which is revolving around the earth like this. तो अभी देखो होता क्या है ना कि अगर सपोज अर्थ घूम रहा है, ठीक है, अर्थ का जो एक्सिस है, एक्सिस ऑफ रोटेशन, वो सपोज ऐसा है. सपोज ये अर्थ है, ठीक है, और ये उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और सैटेलाइट यहाँ पे हमने लॉन्च करके रखा है. ठीक है, ये देखो ये सैटेलाइट है. सपोज this is the satellite which is at this height h above the surface. Okay, now suppose that the earth rotates through suppose 90 degree. Okay, तो मान लो कि अर्थ जो है वो 90 डिग्री से रोटेट होता है, और एट द सेम टाइम अगर ये सैटेलाइट भी 90 डिग्री से अगर रोटेट हो जाता है इस तरह से, फिर अगर अर्थ अर्थ जो है वो पूरा 180 डिग्री से रोटेट होता है, तो सैटेलाइट भी आधा चक्कर कंप्लीट कर लेता है. फिर जब अर्थ 3/4 रोटेशन कंप्लीट करता है, तो ये सैटेलाइट भी 3/4 रोटेशन कंप्लीट करके जब अर्थ पूरा एक सर्कल कंप्लीट करेगा, तब ये सैटेलाइट भी अगर पूरा एक सर्कल कंप्लीट कर रहा है, देखो ठीक से सैटेलाइट का जो रिवॉल्यूशन है, ये सपोज इस तरह से हो रहा है, ये पीछे चला गया, और उसके बाद फिर यहाँ से आगे इस तरह से वो रिवॉल्व कर रहा है सैटेलाइट. तो ये जो सैटेलाइट का रिवॉल्यूशन हो रहा है, तो उसका स्पीड मतलब उसका जो टाइम इंटरवल है, मतलब एक एक सर्कल अर्थ जो है एक चक्कर कितने घंटे में काटता है, तो हमको पता है 24 आवर्स के अंदर अर्थ एक पूरा चक्कर काट लेता है. अभी सैटेलाइट को अगर हमने इस ऐसे हाइट पे लॉन्च किया ताकि वो भी एक पूरा चक्कर जो है वो 24 आवर्स के अंदर अगर काट ले, तो उसको कहते हैं कम्युनिकेशन सैटेलाइट. सच अ सैटेलाइट इज एक्चुअली कॉल्ड एज द कम्युनिकेशन सैटेलाइट. अभी हम इसको ऊपर सामने से देख रहे हैं इसलिए हमको ऐसा दिख रहा है. अगर हम ऊपर से देखेंगे तो कैसे दिखेगा हमको पता है. ये देखो ऊपर से देखने से हमको इस तरह से दिखाई देगा. सपोज दिस इज द अर्थ and axis of rotation now in this case is perpendicular to the plane of this figure. Okay, तो इस फिगर के प्लेन को परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और मान लो कि सैटेलाइट यहाँ पे है. तो देखो ठीक से कि अभी जब अर्थ जो है तो वो जब यहाँ से यहाँ तक घूम जाएगा, मतलब 90 डिग्री से जब अर्थ घूम जाएगा इस तरह से, तो ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा. तो उस ड्यूरेशन में ये सैटेलाइट भी 90 डिग्री से घूम के यहाँ पे आ जाएगा. देखो ठीक से. फिर अगर और थोड़े 6 घंटे के बाद मान लो कि अर्थ जो है वो यहाँ से फिर यहाँ पे आ जाएगा, बिल्कुल डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट पे, तो ये सैटेलाइट भी उस ड्यूरेशन में 6 घंटे के अंदर यहाँ पे आ जाएगा. तो ये देखो 6 + 6 कितना हो गया, 12 घंटे हो गया. ठीक है, अभी उसके बाद फिर अर्थ और घूम के और 6 घंटे के बाद कहाँ पे आएगा, ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा सपोज. ठीक है, तो उस 6 घंटे के अंदर ये सैटेलाइट भी उतना पार्ट कवर करके यहाँ पे आ जाएगा, और उसके बाद और 6 घंटे के बाद मतलब पूरे 24 घंटे के बाद जब अर्थ एक पूरा रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है, तो ये सैटेलाइट भी अपना एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर लेगा. सो दिस टाइप ऑफ सैटेलाइट विल अपीयर ऑलवेज स्टेशनरी एज सीन फ्रॉम एनी पॉइंट ऑफ द अर्थ. मतलब अगर ये पॉइंट यहाँ पे चला गया तो उस समय सैटेलाइट यहाँ पे रहेगा, बराबर. अगर ये पॉइंट यहाँ पे चला गया तो सैटेलाइट उस समय यहाँ पे रहेगा. जब ये पॉइंट यहाँ पे जाएगा, मतलब अर्थ घूमते घूमते जब ये पर्सन यहाँ पे जाएगा, तो हमको वो सैटेलाइट यहाँ पे दिखाई देगा. फिर यहाँ पे जब जाएगा तो सैटेलाइट यहाँ पे रहेगा. मींस एट एवरी पॉइंट वी कैन सी द सैटेलाइट टू बी एट द टॉप ऑफ आवर हेड इन दिस वे. तो जहाँ पे भी हम जाएंगे तो सैटेलाइट भी हमारे साथ 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 चलता रहेगा. तो इस टाइप के सैटेलाइट को एक्चुअली कम्युनिकेशन सैटेलाइट कहा जाता है, क्योंकि दिस सैटेलाइट इज वेरी वेरी मच यूजफुल फॉर कम्युनिकेशन पर्पस. तो ये सैटेलाइट जो है वो कम्युनिकेशन के लिए बहुत यूजफुल होता है. क्योंकि देखो अगर समझो ये अर्थ के आसपास अगर हमने एक सैटेलाइट अगर लॉन्च कर दिया यहाँ पे जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, और एक बात याद रखो ठीक से कि सिंस द टाइम पीरियड ऑफ कम्युनिकेशन सैटेलाइट इज फिक्स्ड, the height of this communication satellite is also fixed. It is almost about 36,000 kilometer, remember.
तो ये जो 36,000 किलोमीटर पे जब हम सैटेलाइट लॉन्च करेंगे तभी जाके उसका जो टाइम पीरियड है वो वन डे मतलब ही 24 आवर्स के बराबर होगा। ये बात याद रखो ठीक से। The communication satellite has a period of 24 hours and its height is almost about 36,000 kilometer. Remember, apart from radius of Earth, radius of Earth is not included in this case here. It is just the height only. ये height सिर्फ 36,000 किलोमीटर है, radius उसमें included नहीं है, radius is different. height तो surface से ही होता है ना, yes. तो इस तरह से ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट होता है। अब ये इस कम्युनिकेशन सैटेलाइट के पास जो भी सिग्नल पहुंच जाता है तो वो उसके सामने रहने वाले पूरे 1/3 पार्ट ऑफ अर्थ के ऊपर वो डिस्ट्रीब्यूट कर लेता है। सो दिस कम्युनिकेशन सैटेलाइट वर्क्स इन सच अ वे दैट एनी सिग्नल which is transmitted to the satellite will just be transmitted over whole 1/3 part of the earth in this way. So it covers almost 1/3 part of the earth in this way here. And if we suppose use the 3 communication satellites like this, अगर 3 communication satellites हम यहाँ पे लॉन्च करेंगे सेम ऑर्बिट पे, ये देखो ये 3 सैटेलाइट हमने लॉन्च किए सपोज सेम ऑर्बिट में अर्थ के आसपास, और ये तीनों घूम रहे हैं सर्कुलर ऑर्बिट में सपोज इस तरह से, इस सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर हमने ये तीनों सैटेलाइट्स को लॉन्च कर दिया इस तरह से। सो ऑल दिस 3 कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स combined together will cover the whole globe because every satellite will cover 1/3 part of the earth surface. Okay, ये अपना 1/3 part कवर करेगा, ये भी अपना अलग 1/3 part कवर करेगा। तो ये तीनों सैटेलाइट्स मिलके क्या करते हैं, एक ऑलमोस्ट 1/3 part कवर कर लेते हैं, और उसकी वजह से द होल ग्लोब कैन बी कवर्ड for the transmission. So any signal which is transmitted to any one satellite is distributed over that 1/3 part of this earth, and also it is distributed to other 2 satellites here. तो मतलब जो भी सिग्नल हम एक सैटेलाइट को देते हैं वो बाकी 2 सैटेलाइट्स को भी दे देता है, जिसकी वजह से वो 2 सैटेलाइट्स उनका अपना 1/3 पार्ट भी कवर कर लेते हैं, वो सिग्नल को उनके अपने अपने 1/3 पार्ट पे कवर कर लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, जिसकी वजह से एनी सिग्नल ट्रांसमिटेड टू एनी वन सैटेलाइट इज जस्ट डिस्ट्रीब्यूटेड टू ए होल द होल ग्लोब। तो पूरे ग्लोब के ऊपर वो सिग्नल ट्रांसमिट हो जाता है इस तरह से, एंड द ग्लोबल कम्युनिकेशन कैन बी अचीव्ड इन अ बेटर वे बाय यूजिंग दिस कम्युनिकेशन सैटेलाइट। तो ये जो हम लाइव मैचेस वगैरह देखते हैं, जो या कोई बीबीसी न्यूज वगैरह देखते हैं, तो वो ब्रॉडकास्ट किए जाते हैं अमेरिका में और हम सुन रहे हैं यहाँ पे, जो कि सैटेलाइट के द्वारा ही पॉसिबल है। तो दिस सैटेलाइट कम्युनिकेशन इज अ वेरी इफेक्टिव channel here, and even satellites are also used for weather forecasting. The satellites are also launched in the polar orbits. देखो सपोज ये अर्थ है और ये उसका एक्सिस है, तो सैटेलाइट इज लॉन्च्ड इन दिस सच टाइप ऑफ ऑर्बिट लाइक दिस। इस ऑर्बिट में भी सैटेलाइट लॉन्च किया जाता है। अब ये सैटेलाइट क्या करता है, अर्थ को बार बार स्कैन करता है और उसके जो फोटोग्राफ्स है तो वो फोटोग्राफ्स हमको भेजता रहता है, और उसकी वजह से हमको वेदर फोरकास्टिंग में हेल्प मिलता है। मींस वी कैन प्रिडिक्ट what will happen after 1 day, after 2 days, after 3 days, or after a month, and so on like that. So मॉनसून या जो बारिश का जो डिफरेंट कंडीशंस वगैरह होते हैं वो सब हमको पता चलते हैं इसमें से। सो दिस इज द यूजेस ऑफ सैटेलाइट्स, एंड दिस इज ऑल अबाउट द कम्युनिकेशन सैटेलाइट। ओके, यस। Okay, so I think let us start with the MCQs. I hope you may have tried MCQs at home that I have shared with you in the app. मैंने ऐप में आपको कुछ MCQs शेयर किए थे, तो आपने वो सॉल्व किए हैं उसमें से कुछ? अगर उसमें कुछ आपको डाउट है तो पूछ सकते हो। Okay, so I will just open that file that was shared to you in the app.
Just wait. Yes, so I think this is only the file which we have shared. And yes. One more thing, we have left with some concepts. That is, ओके ये तो सबको पता है ना कि अर्थ के सरफेस पे जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है तो वो g होता है, बराबर? तो g is the acceleration due to gravity on the surface of earth, right? And if we see the acceleration due to gravity at the height h above the earth surface, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला है? gh के लिए क्या फॉर्मूला है हमको पता है ऑलरेडी. It is capital Gm upon r plus h the whole square. Okay. And what is the formula for finding the gravitational acceleration at the depth d below the earth's surface? It is simply 1 minus d upon r into g, correct? And yes, so all these are the formulae for the depth, and also that the due to the rotation of earth, rotation की वजह से या latitude के हिसाब से जो gravitational acceleration है, तो वो भी हमारे पास है g minus r omega square cos square phi. चलो ठीक है, so just remember all these formulae. तो आज के दिन सिर्फ फॉर्मूले रन करके रखो ठीक से. So we will start the MCQs next time tomorrow. Yes, so let us stop here. Thank you all of you.